Hello students. Next we have studied the topic of application of derivative and we have done maxima, minima, tangent and normal and approximations. Now it's the time to solve the miscellaneous examples for exercise 8.6 in which we will be given some function like we have to do the area maximum, volume minimum, means maximize or minimize. On its basis we will have some questions and we will have to solve all this. Suppose we take first question of all rectangles each of which has perimeter 40 meter. Find one which has maximum area. Find area also. In this question what we have to do means all the rectangles whose perimeter is 40 meter. Now we do not know what is the dimensions of rectangle. So let us take x is length and y is breadth. So in solution we will take, let x and y are length and breadth of rectangle. Now what is given? Perimeter 40 meter. Here perimeter will be equal to twice of x plus y. And we are given it 40. So 40 is equal to twice of x plus y. X plus y, this implies, is equal to 20. This is equation number 1. Now we have to find area, but that area should be maximum. मीन्स हमें कोई रेक्टेंगल दे दिया गया, ये कह रहा है रेक्टेंगल चाहे कैसी ही लेंथ ब्रेड्थ लो, बस एक कंडीशन फिक्स है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 मीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं ना कम. रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो 40 हो बट उसका एरिया मैक्सिमम हो. अब एग्जाम्पल्स तो अलग अलग बनेंगे बेटा, जैसे कि 40 है तो आप 10 की 4 साइड्स भी ले सकते हैं. और अगर आपने ये भी कर दिया हो सपोज 15 30 एंड 5 तो रेक्टेंगल तो किसी तरीके से भी बनेगा बट पेरीमीटर 40 रहेगा. अब एरिया किस डायमेंशन का मैक्सिमम होगा? तो अभी हमने क्या किया, एरिया का फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x इंटू वाई. सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको मैक्सिमम बनाना है एरिया को. तो अगर मैक्सिमम एरिया को बनाना है तो वन डायमेंशन में ही, वन वेरिएबल में ही काम करेंगे. और यहाँ पर एरिया के दो कंपोनेंट्स हैं x और y, तो टू वेरिएबल्स में नहीं चलेगा. तो x इंटू फ्रॉम 1 इस फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लेंगे 20 माइनस एक्स. तो ये आ जाएगा x इंटू 20 माइनस एक्स मीन्स एरिया इज 20x माइनस एक्स स्क्वेयर. तो एरिया विल बिकम 20x माइनस एक्स स्क्वेयर. फिर हम क्या करेंगे, अब एरिया आ गया तो dA बाई dx, इसका डेरिवेटिव निकाल दो 20 माइनस 2x. पुट dA बाई dx इक्वल टू 0, तो 20 माइनस 2x इक्वल टू 0. 20 इज इक्वल टू 2x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10. और अगर x 10 है तो y के फॉर्मूला में पुट करेंगे इन इक्वेशन 2. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y is 20 minus 10 means x is also 10 y, but we do not know कि it is maximum or no. मैक्सिमा या मिनिमा का डिसीजन कैसे होता है हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं. मैक्सिमा मिनिमा का डिसीजन होता है, आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कीजिए. तो व्हाट वी विल डू नाउ, dA by dx we are having, let us differentiate it again, d square a by dx square, that will become 20 minus 2x means ओनली -2. 20 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 एंड x का डेरिवेटिव 1 -2 विच इज नेगेटिव. और हमने पढ़ा था डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो, देयर इज मैक्सिमम एट x equal to 10. So therefore what we conclude from here,
कि at x equal to 10 and y equal to 10 area will be maximum. So what will be maximum area now? Maximum area is 10 multiply 10, 100 meter square. This is the maximum area, and one condition we come to know that area of rectangle is maximum when it is a square. अगर कोई rectangular square ही बन जाता है तो उसका area maximum होता है. ठीक है. Next is next question. Given that sum of perimeter of sphere and circle is constant, and show that sum of their areas is least when the side of square is equal to diameter of circle. When it is equal to diameter of a circle. So now what is given? There is a one square. Another there is a one circle. So one circle and one square we are having. गिवन दैट सम ऑफ पेरीमीटर है तो हमें क्या करना है, एक स्क्वायर और एक सर्कल सपोज कर दिया. लेट स्क्वायर की साइड माननी है आपको, तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज x whatever dimension you are taking, and let radius of circle is r. तो radius of circle is r and side of square is x. तो what is given? पैरामीटर सर्कल का और स्क्वायर का उनका सम कर दें तो वो कांस्टेंट है, तो हम उसको p मान लेते हैं. स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा? 4x. सर्कल का पैरामीटर उसका सरकमफ्रेंस होता है, तो इट इज सरकमफ्रेंस तो 2πr. तो 4x p इज इक्वल टू 4x प्लस 2πr इज फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज गिवन. तो जो चीज़ आपको गिवन होती है उसको आप यूटिलाइज करोगे, बट p एक कांस्टेंट नंबर होगा तो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा. दिस इज अ कांस्टेंट नंबर. गिवन मीन्स कुछ वैल्यू दी हुई है. शो दैट सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट. मुझे दिखाना है कि इन दोनों के एरिया का सम तभी लीस्ट होगा अगर स्क्वायर की साइड सर्कल के डायामीटर के बराबर हो. स्क्वायर की साइड कितनी है? x, और सर्कल का डायामीटर कितना होगा? रेडियस का डबल 2 होगा. तो ये चीज़ आपकी लास्ट में प्रूव होनी चाहिए कि सर्कल का साइड 2r के बराबर है. नाउ बट वी विल टेक एरिया. एरिया में क्या लेंगे? एरिया ऑफ सर्कल इज x square plus what is area of square is x square, and what is the area of circle? Pi r square. Now question is of two variable, but we cannot use two variables. We are supposed to use only one variable. तो आपकी चॉइस है, या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, या r की फाइंड आउट करके स्क्वायर कर दो. इट्स योर चॉइस. r में सारा फंक्शन बनाओगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r होगा. अगर सारा फंक्शन x का बनाओगे तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा. हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं. क्या बनेगी? p माइनस 2πr डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर प्लस πr. नाउ आई हैव टू डू, दिस इज योर एरिया dA बाई dr. बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ r, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? किसी चीज़ का स्क्वायर है तो 2 इंटू p माइनस 2πr बाई 4
स्केयर है तो पावर एक आगे आ गई, पावर 1 हो गई। अब p माइनस 2πr का डेरिवेटिव, p का डेरिवेटिव 0, r का डेरिवेटिव 1 माइनस 2π/4 प्लस पाई इंटू आर स्केयर का डेरिवेटिव 2। ये जितना भी टर्म आया हमें इसको सारे को सॉल्व करना है। 2 2 और ये 4 एक कट हो जाएगा। टर्म विल बिकम p माइनस 2πr इंटू माइनस पाई प्लस 2πr इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू dA/dr। Now what is the next step? What we have to do कि if it is the dA/dr, तो in next step what we do, put first derivative dA/dr equal to 0। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखना है, तो माइनस p माइनस 2πr इंटू माइनस पाई प्लस 2πr इक्वल टू 0। दिस माइनस टर्म विल गो ऑन दैट साइड, तो 2πr is equal to pi into p minus 2πr. What we will get here? Now, what is p minus 2πr? Again from equation 1. अभी हमने किया था, तो इक्वेशन 1 में से p minus 2πr की वैल्यू किसके बराबर है? 4x। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 4x pi 2πr. Pi cancels out, and what will be now next step? Pi will cancel, it will become 2, r is equal to x minus 2πr by 4, sorry 4 is left here, so minus pi by 4 is there, so it was minus pi by 4, so p minus 2πr by 4 is left here, and we are putting pi into 4x by 4. 4 will cancel out, pi x is equal to 2πr, तो we get pi x, pi से pi cancel हो जाएगा, x is equal to 2r। तो here we got the equation x is equal to 2r। जब आपको ये चीज़ मिल गई, ठीक है, हमें पता चल गया कि जो चीज़ डिमांडेड थी कि स्फीयर की साइड सर्कल के डायमीटर के बराबर होनी चाहिए, तो वो आ रही है। लेकिन अभी हमने ये प्रूव नहीं किया कि इट इज़ मैक्सिमम। हाउ वी विल प्रूव इट इज़ मैक्सिमम? वी विल टेक डबल डेरिवेटिव ऑफ एरिया। व्हाट इज डबल डेरिवेटिव? अगेन इट्स डेरिवेटिव, p का डेरिवेटिव 0 माइनस 2π इंटू माइनस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 2π एज इट इज। दिस इज and when it is pi square by 2 plus 2, तो it is positive, और पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? एरिया इज लीस्ट। तो यही चीज पूछी थी, तो एरिया इज लीस्ट व्हेन x is equal to 2r. So this was the proof, and similarly we can do other questions also like that. These were the two important questions. Next we will discuss in next video.